नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल 23 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी। नाज़रीन मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं, रूबरू कराते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब, इस्तक़बाल और वालिहाना इस्तक़बाल सना सैयद आपका भी है तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम नाज़रीन आप सबको भी सलाम पेश करती है और सुबह बखैर कह रही है। तो इससे पहले कि अपने आज के मौजू की जानिब आएँ, आज हमने सदक़े नाफिला का इंतखाब किया है क्योंकि बहुत अहम मौजू है और इसके सरोकार या इसके हम ये कह सकते हैं कि ताने बाने हम सब की ज़िंदगियों से, समाजी सरोकार हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह भरपूर रहनुमाई होगी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ सना की खूबसूरत आवाज़ में एक मुनाजात से किया जाए। तो सना की आवाज़ हम सब के दिलों की आवाज़ से हम आहंग हो रही है और अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही है। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को फिर वादे फारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर वादे फारा के हर ज़र्रे को चमका दे, हर ज़र्रे को चमका दे। फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तक़ाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, फिर दीदे बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब
دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. سبحان اللہ ثنا. وقت کی قلت نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ آپ یہ پوری پڑھیے، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ مناجات ہے، اور جس انداز میں اقبال نے اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا ہے اور جس طرح آپ نے اسے پیش کیا، دونوں لاجواب ہیں. بہت شکریہ، سلامت رہیے، اور انشاءاللہ کبھی آپ سے ہم یہ پوری مناجات سنیں گے. یہ بہت خوب، بہت خوب. تو ناظرین، وقت ہو رہا ہے مجاز صاحب کے پاس چلنے کا، اور آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23واں روزہ ہے. آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد. اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کی تراویحوں کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی قرآن کی تلاوت کو، آپ کی قرآن فہمی کو اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے، آمین. احمد بن طولون جو مصر اور شام کے مشہور خاندان طولونیہ کے بانی تھے، ان کی پیدائش 23 رمضان 220 ہجری کو ہوئی. اس خاندان نے 254 ہجری سے لے کے 294 ہجری تک مصر اور شام پہ حکومت کی ہے. جمال الدین خنساری کا انتقال بھی 23 رمضان سن 1125 ہجری کو ہوا تھا. بیگی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے روز جنت کو سجایا جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کے ابھی جانے سے پہلے ہی جنت کو آپ کے لیے روز سجایا جاتا ہے. کس طرح فرشتے اور حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے جنت میں، تب جنت کو ہمارے لیے سجایا جا رہا ہے. کیسی مہمان نوازی ہے اور کیسا میزبان ہے. اور جب ہمارا وہاں داخلہ ہوگا تب کیا حال ہوگا، کس طرح کی مہمان نوازی ہوگی. اس لیے بے انتہا ذوق اور شوق سے روزے رکھیں. بالکل یہ نہ سوچیں کہ گرمیوں کا مہینہ ہے، بلکہ جس طرح پچھلے سال اللہ نے آپ کی مدد کی تھی، اس سال بھی آپ کے تمام روزے رکھوا دیے. باقی کے جو 6-7 روزے رہ گئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی اسی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آج کے دن کے بارے میں تاریخ کے آئینے میں دکھانے کے لیے. اور اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے نامور عالم دین جناب مولانا رئیس الدین اظہری صاحب کا. پرتپا خیر مقدم، خوش آمدید مولانا صاحب. ایک بار پھر مولانا عبداللہ طارق صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے. تو ناظرین، اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. صدقہ نافلہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھرپور گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم انفق کہ تمہیں میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحبان کی طرف بڑھیں گے. کہ ایک شخص چٹیل میدان سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ میں پانی دو، اس کے باغ کو سیراب کرو. تو وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ابر کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا ایک سمت کو چل پڑتا ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ وہ بادل چٹانوں پر برستے ہیں، اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ نالا سا بن جاتا ہے، اور وہ نالے کا پانی ایک سمت کو بہنے لگتا ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے تجسس میں، اور دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک شخص کے کھیت میں جا رہا ہے جو کدال لے کر اس پانی کو اپنے کھیت میں لگا رہا ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیوں دریافت کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بتاؤ تو. وہ اپنا نام بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ وہی نام ہے جو میں نے بادلوں میں سے سنا تھا کہ جاؤ اس شخص کے کھیت کو سیراب کرو. تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم جب دریافت کر رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی خاص کام تو نہیں کرتا، صرف اتنا کرتا ہوں کہ اس کھیت کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ میں یا اسی کھیت میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، اس کی کھیتی باڑی میں یا اس کے اخراجات پر صرف کرتا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارا یہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ بادل کے ایک ٹکڑے کو یہ خاص طور پر حکم ہوا کہ جاؤ اور فلاں شخص کے باغ کو یا کھیت کو سیراب کرو، جبکہ ابھی بارشوں کا موسم بھی نہیں تھا. تو ناظرین، انفاق فی سبیل اللہ کی بہت اہمیت ہے. دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. دنیا میں بھی بھلائی ہے، سربلندی ہے مولانا صاحب، اخروی نجات بھی ہے. تو صدقہ نافلہ، اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हमारी गुफ्तगू शुरू होने से पहले जी सलाम और सन फार्मा की तरफ से तमाम रोज़ेदारों को तवज्जो दिलाई जाती है कि सहरे में आप अपनी मामूल की दवाएं लेना न भूलें, ताकि आपका दिन भी सुकून से गुजरे और रोज़ा भी सहूलत से पूरा हो। सदक़े नाफिला एक अहम मौजू है। नाफिला का मतलब होता है ज़ायद, यानी जो फ़र्ज़ और वाजिब हमारे ऊपर मरतब किए गए हैं, बताए गए हैं, उससे ज़ायद कुछ चीज़ें और भी हमें करनी चाहिए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा और नमाज़ों और रोज़ों और ज़कात वगैरह का हिसाब पूरा होगा, उसमें जिन लोगों की कुछ कमी रह जाएगी जी, तो अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि देखो इसके नामे अमाल में कुछ नफिल सदक़ात, कुछ नफिल नमाजें, कुछ नफिल रोज़े भी हैं या नहीं। तो फिर देखा जाएगा अगर उसमें वो मिलेंगे तो उसके ज़रिए फ़राइज़ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा, चाहे वो नमाजें फ़र्ज़ हों उसके नफिल नमाज़ों के ज़रिए, और रोज़े अगर फ़र्ज़ में कुछ कमी है तो नफिल रोज़ों के ज़रिए, और ज़कात में और सदक़े फ़ित्र जो वाजिब हैं उनमें जो कमी होगी वो सदक़ात नाफिला के ज़रिए पूरी की जाएगी। बिल्कुल। मौलाना साहब, सदक़ात नाफिला की अक़साम क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस ज़ुमरे में शामिल हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदक़े नाफिला जो है बहुत एक अहम मौजू है, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया, और इसमें जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि आप पर जो इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं उन फ़र्ज़ इबादतों, वाजिब इबादतों से हट के उसके अलावा आप अब ततव्वुअन जो इबादतें करते हैं, चाहे वो अमली इबादत हो चाहे वो माली इबादत हो, ये तमाम के तमाम सदक़ात नाफिला में आते हैं, जिसमें एक नियत शर्त होती है कि ये जो काम आप कर रहे हो ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। आप कोई माल खर्च कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी मुसलमान भाई की तरफ अच्छी निगाह से देखना, मुस्कुरा कर उसको सलाम करना, ये भी सदक़ात नाफिला में से ही आते हैं। तो सदक़ात नाफिला जो भी आप अमल कर रहे हैं उसको अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो सदक़े नाफिला में आता है। देखो साहब, यहाँ एक छोटा सा वाक़या फिर याद आ गया कि एक शख्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया, उस शख्स के पास कुछ था नहीं, तो उसने कहा या अल्लाह, जो अमीर लोग हैं वो तो पैसों से सदका करेंगे, माल से सदका करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। किसी शख्स ने अगर मुझे दुख पहुँचाया, तकलीफ पहुँचाया, तो मैं तेरी रज़ा के लिए उसे माफ़ करता हूँ। अगले सुबह बारगाह नबूवत में वो शख्स हाजिर होता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं कि वो शख्स कौन है जिसने कल रात अपनी इज्जत का सदका किया? तो वो शख्स खड़ा होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सताइश करते हैं कि मौलाना साहब, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि मालदार तो सदका करते हैं, और आपने देखा होगा कि फ़ुक़राए सहाबा अक्सर ये कहा करते थे कि जो मालदार हैं वो तो बाजी ले गए, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है तो अल्लाह ने उनके लिए भी तहीदामनी नहीं रखी है। मौलाना साहब, उनके लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे वो सदका करके अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं? देखिए, बेशुमार चीज़ें हैं। असल चीज़ ये है कि हमारा ये जज्बा हो कि हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। हाँ। उसके लिए हम तलाश करें हम क्या क्या कर सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं कि तुम रास्ते में गुजरते हुए कोई तकलीफ देने वाली चीज़ तुमने हटा दी, वो भी सदका है। बिल्कुल। एक ईंट पड़ी हुई थी, कहीं छोड़ दी किसी ने, हमने देखा कि आने जाने वाले किसी के पैर में चोट लग सकती है, हमने उसे पाँव से एक तरफ कर दिया, वो भी सदका है। अच्छी बात कहना किसी को, वो सदका है। किसी की सिफारिश कर देना, ये सदका है। और ये जो बात आपने बताई, इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। एक आदमी ने हमें चलते चलते कोई बात गलत कह दी जो हमें तकलीफ़ हुई, अब उस तकलीफ़ के नतीजे में उसके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है, हमें जो ईज़ा दी है तो ईज़ा हराम है, हम ये कहें कि हमने उसको माफ़ कर दिया, ये वही चीज़ है कि इज़्ज़त का सदका किया। तो राहत का सदका है, इज़्ज़त का सदका है। छोटी छोटी चीज़ें, असल में आदमी जब ये चाह लेता है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, उसके लिए क्या क्या मौक़े हैं, तो बेशुमार मौक़े मौजूद हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला आदमी अल्लाह को राज़ी कर सकता है। बिल्कुल साहब, अल्लाह के राज़ी करने के साथ साथ अल्लाह के बंदों को भी राज़ी कर लेता है। हम ये देखते हैं कि इंसान की जो शख्सियत है उसकी तामीर और तश्कील में वो तमाम बातें जिनका आपने जिक्र किया, ना इसमें माल सर्फ होता है, ना इसमें जो है बहुत ज़्यादा कोई मेहनत दरकार है। मुस्कुरा के किसी को देख लेना सदका है, मजलिस में किसी के लिए जगह बनाकर उसको बैठने की जगह दे देना, अपनी वालदा को, अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखना, ये भी एक सदका है। अब सदका किन चीज़ों से ज़ाहिल हो जाता है, बातिल हो जाता है?
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. تو وہ چیزیں جو صدقے کو خراب کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، تو وہ چیزیں کیا ہیں مولانا؟ بالکل، اللہ رب العزت نے بہت ہی صاف طریقے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر یا انہیں تکلیف دے کر ضائع مت کرو. ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ فیس بک وغیرہ پہ بھی دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ چند مال یا چند امداد لے کر غریبوں کے پاس پہنچتے ہیں، ہاسپٹل میں یا کہیں بھی، اور اس کو دیکھ کر ایک سیلفی کھنچا کر اور اس کو جو پوسٹ کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آپ نے خیرات تو کی، صدقہ تو کیا، لیکن اس کی تشہیر کر دی. اب اس تشہیر میں ایک تو آپ کی ریاکاری ظاہر ہو جاتی ہے، دوسری چیز اگر وہ شخص ایسا ہے، غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے کوئی امداد لی ہے، تو جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ پھیل گئی، یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے یہ امداد حاصل کی ہے، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ اپنے صدقے کو احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر کسی کو ضائع مت کر دو. یہ بہت بری چیز ہے اور ہمارے ماحول میں عام ہو چکی ہے. ہم تمام مسلمانوں کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. صدقہ وہی ہے جو آپ اپنے مال میں سے یا اپنی کسی بھی چیز سے نکال کر کسی حقدار کو پہنچاتے ہو اور اس کے لیے صرف ایک ہی نیت رکھتے ہو کہ اس کا بدلہ ہمیں صرف اللہ رب العزت سے ملنے والا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے والی. آخری بات سے پھر ایک سوال آ گیا مولانا صاحب، پوشیدہ صدقہ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دانا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جی. ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی بہت ضرورت مند ہے یہ اور اس کو ہمیں کچھ دینا چاہیے، ہم نے دور سے ہی جیب میں سے ایک نوٹ نکالا اور ہاتھ میں لے لیا اور وہ گزرتے ہوئے اس سے ہم نے السلام علیکم کہا اور اس کے ہاتھ میں لایا اور ہمارے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا اور وہ چلا گیا. یہ جتنا خفیہ، جتنا خاموشی سے دیا جائے گا، اس میں ایک تو دوسرا شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اور یہ جو بات کہی، ایک ذرا سی بات میں اس میں بڑھا دوں کہ ایک تو احسان جتانا ہوا، اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. ایک اور عزا جو پھر کہا گیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتانا بھی تکلیف کی بات ہے. اور ایک عزا یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے احسان کیا وہ شرمندہ تو رہتا ہے، احسان مند رہتا ہے. اب آپ اس سے بار بار بیگار لیں، ذرا فلاں صاحب ذرا یہ کام کر دیجئے، آپ ذرا بازار جا رہے ہوں تو ہمارا یہ لیتے آئیے گا. وہ بیچارہ چونکہ احسان مند ہے اس لیے منع نہیں کرے گا، لیکن آپ یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو. آپ نے چونکہ اس کو صدقہ دیا تھا، آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی تھی، اب آپ اس سے کام لے رہے ہیں. یہ بیگار کس کھاتے میں جائے گی؟ یہ بیگار لینا بھی اذیت ہے جس کے ذریعے آپ کے صدقات، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی بہت ساری خیریں برباد ہو جاتی ہیں. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقے کا وہ مال یا وہ رقم اجرت میں داخل ہو جاتی ہے. بالکل، وہ اجرت میں داخل ہو گئی. آپ نے ایک چیز کسی کو نیکی کے لیے دی اور پھر اس سے بیگاری کروا رہے ہیں. تو مولانا صاحب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اس طرح صدقہ کیجئے یا کوئی بھی کار خیر کیجئے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہے. حضرت ابوبکر صدیق عموماً رات کے اندھیرے میں نکلا کرتے تھے. مسجد سے نکلتے تھے تو اکثر وہ پیر کی آہٹ سے لوگ پہچان نہ لیں، وہ ننگے پاؤں ہوا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق کا بھی یہ تھا حال کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. تو تنہا یعنی اس طرح کوئی کام، نیکی کا کام کرنا کہ اللہ کے بندوں کو بھی خبر نہ ہو، صرف بندہ جانے اور اللہ جانے، اس کا اجر و ثواب کتنے گنا بڑھ جاتا ہے. بالکل، صحابہ کرام کا اگر عمل دیکھیں تو وہ تو اس میں اور آگے بڑھے ہوئے ہوتے تھے. کوئی اگر 1 روپیہ مانگ لے رہا ہے، 1 درہم مانگ لے رہا ہے تو اسے 100 عطا کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، اور جبکہ آپ خلیفہ ہوا کرتے ہیں، تو جب آپ کے پاس پہنچتا ہے اور خاموشی سے آپ سے فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت قرض دار ہوں، مجھے تھوڑا سا مال کی ضرورت ہے، اگر آپ امداد فرما دیتے تو بہتر ہوتا. اسے آپ اپنے کمرے میں لے کر جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چٹائی رکھی ہوئی اور ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے. تو میں امیر المومنین تو ہوں، لیکن میں نے اپنے پاس کوئی چیز رکھی نہیں ہے. میں نے ساری چیزیں اپنی تنخواہ بھی جو ہے ان غریبوں کو عطا کر دی ہے جن کا حق بنتا ہے، اور اس کا ان کو اظہار نہیں کیا. ہاں، ایک طریقہ بھی بتایا کہ دیکھیے اس میں چیز اور جوڑ دینے کی، اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے طلب کرتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس شخص کی طرف اس کو موڑ بھی سکتے ہیں جو دینے والا ہے. اس میں بھی ایک امداد ہو جاتی ہے. حضرت عمر کو خوب معلوم تھا کہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن حضرت عثمان کے پاس ہے، تو ان کو دھیرے سے خبر کی کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیے اور ان سے آپ طلب کی تو ضرور ملے گا. وہ دھیرے سے ان کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ شہد کے ساتھ کھجور ملا کر کھا رہے ہو، 2 ایک ساتھ کھا رہے ہو. تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو
इस तरह का मामला है कि ये दो चीज़ों को एक साथ खाना भी पसंद नहीं करते, तो ये कैसे हमें अता करेंगे? चुनांचे वो सलाम वगैरह करके जाने लगते हैं, तो हज़रत सलमान कहते हैं रुको, तुम जिस गर्ज से आए अपनी वो गर्ज तो पूरी करके जाओ। तो कहा ठीक है, बैठते हैं, बैठाया उनको और उसके बाद उनके लिए 3 तरह के खाना पेश किया। उनको बहुत हैरत हुई कि ये 2 खानों के लिए अपने बच्चों को डांट रहे थे और मेरे लिए 3 खाना पेश किया। तो फरमाते हैं कि मुझे हैरत हो रही है आपकी इस अमल पे। कहा कि वो मेरे बच्चों के लिए था, लेकिन मेरे मेहमानों के लिए मुझे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया मैं उसमें से ज़रूर उसको खिलाऊंगा। और कहा कि आप जाते वक्त अपनी सवारी लेते हुए जाइएगा, उस पर मैंने 200 दिरहम और आपके सफ़र के सारे जो असासे हो सकते हैं वो मैंने जमा कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत तो 100 दिरहम की थी। कहा कि वो आपकी ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे अता किया है उसमें से मैं दे रहा हूँ, तो उसमें से मुझे नहीं लगता कि ये मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। तो सहाबा इकराम का जो अमल था, इसमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो आपके पास नहीं, तो एक उस शख्स की तरफ आप मोड़ दें जिसके पास है और वो दे सकता है, और जितना मांगा उससे कहीं ज़्यादा दिया। बिल्कुल, तो ये तो बंदों की अता है। अगर हम अल्लाह की अता की तरफ आए मौलाना साहब, हातिम ताई का एक वाक़या है कि एक शख्स गया और कहा मुझे भूख लगी है, कई दिनों से फाके से हूँ, खाना दीजिए। तो उन्होंने 10 बोरियां अनाज की उठवा दी। तो उसने कहा कि मैंने तो एक वक्त का खाना मांगा था, आपने 10 बोरियां अनाज की दे दी। तो हातिम ताई ने कहा कि तुमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सवाल किया और मैंने अपने इस्तेताअत के मुताबिक तुम्हें दिया। तो मौलाना साहब, एक बंदे के साथ खैरखाही का ये आलम है, तो इस नेकी पर वो रब कितना खुश होता है और वो कितना अजर व सवाब देता है। कुरान पाक में आयात मिलती हैं। जी, कुरान मजीद की बात है, हदीस नबवी में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देता है तो हर देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। जैसे हज़रत उस्मान गनी के वाक़े में उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, हातिम ताई ने अपने जोश और जज्बे के मुताबिक दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने लामहदूद हैं, वो जब देता है तो उसकी कोई इंतहा नहीं होती, आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा कीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को कुछ दिया करते थे, एक शख्स ने ललचाई हुई नज़रों से भेड़ बकरियों को देखा था। देहात का रहने वाला था, बकरियां पालता था, उसे दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है बकरियां और भेड़ नज़र आ रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अच्छा लग रहा है सब? उन्होंने कहा धन तो अच्छा ही लगता है। जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सब ले जाओ। उन्होंने कहा कितने ले जाऊँ? क्योंकि सब, क्योंकि जहाँ तक नज़र जा रहा है सारा ले जाऊँ? क्योंकि हाँ सब ले जाओ। वो सारा हाँक के ले गया। ये बात उसने कहा कि इतनी बड़ी दाद दहिश के लिए कोई और आदमी आसानी से तैयार नहीं हो सकता। और एक शख्स ने जो ये बात कही थी, ला यतीब लिमिस्लि हाज़ा इल्ला क़ल्ब नबिय्यिन, इतनी बड़ी दाद दहिश के लिए सिवाय पैगंबर के किसी और का दिल गुर्दा नहीं हो सकता। तो जब इंसान इतना देता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताओं का क्या ठिकाना है। बिल्कुल। मैं सर जी से चाहता है कि अभी और गुफ्तगू होती, लेकिन 2 कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर। फ़हीम भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, फिर अगली कॉलर से भी बात करेंगे। जी फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सवाल है कि जैसे तरावी में नमाज पढ़ा रहे हैं हाफिज जी, तो उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहते वो हलाक हो जाए। तो मतलब हम मुख्तरी जैसे पढ़ना है, तरावी की नमाज हाफिज जी पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आया, तो हम लोगों को मतलब ये कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में या नहीं, क्योंकि नियत बांधे खड़े हुए होते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल बाजी मेरा ये है कि शिरीन नाम की भतीजी है हमारी, तो वो बीमार रहती, 4-5 साल की है वो, तो उसका नाम कैसा है शिरीन, और मतलब क्या मायने हैं उसके, और बीमार रहती थोड़ा। नाम क्या बताया भाई, हम तक पहुंचा? शीरीन कहा, शीरीन, ठीक है। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। नसीम साहब हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी मैं बहुत दिन से फोन लगा रही, फोन नहीं लग रहा था आपका। एक बार मैंने पहले फोन लगाया था, सरकारी से भाई बोलते हैं कि बहुत बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं बाजी, मैं बहुत बड़ी हूँ। मेरी दुआ की दरखास्त है, मेरे लिए दुआ कीजिए। ठीक है बहन, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि रमज़ान मुबारक में फ़ौरी तौर पर तवानाई, ताकत और चुस्ती फुर्ती हासिल करने के लिए रिवाइटल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही अहम अज्जा हैं इसमें, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जिंसिंग हैं, जो आपको हशाश बशाश और चाको चौबंद रखने में मदद करते हैं। तो चलिए कॉलर्स के पास चलते हैं, बल्कि कॉलर्स के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। जैसे भाई ने सवाल किया मौलाना साहब कि अगर नमाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आ जाता है, तो ऐसी सूरत में दुरूद सलाम भेजा जाए नमाज की हालत में? देखिए, जब इमाम साहब ने मिसाल के तौर पर कोई ऐसी आयत पढ़ी जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया है, उस वक्त चूँकि अल्लाह का हुक्म ये है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू, इस वजह से उस वक्त में हम बोलेंगे नहीं।
لیکن دل کے اندر جو عقیدت و احترام ہمارے دل میں ہے انشاءاللہ اس وقت وہ کافی ہے. ہم درود و سلام اس وقت میں نہیں پڑھیں گے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور حکم یہ ہے کہ اس وقت آیتوں کو سنا جائے. بالکل. بقیہ سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار, کیونکہ اطہر سعید صاحب منتظر ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. تو چلیے چلتے ہیں پرانی دلی اور دیکھتے ہیں وہاں رمضان مبارک کی رونقوں کا عالم اور عید کی تیاریوں کی چہل پہل. اسلام کی ہر ایک بات حکمت سے بھری ہوتی ہے. یہ مسواک ہے, حالانکہ کہنے کو ایک معمولی پیڑ ہوتا ہے پیلو, اس سے یہ نکلتی ہے, لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں. آپ کے دانتوں کو یہ صاف ستھرا رکھتی ہے, جراثیم سے بالکل محفوظ رکھتی ہے, اور ساتھ میں یہ ہاضم بھی ہوتی ہے, یعنی ہاضمہ بڑھانے والی ہوتی ہے. اور بہت سارے فوائد اس کے ایسے ہیں جو کہ قابل بیان نہیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا تھا اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کا استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے. بہت سارے روزہ دار میرے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ مسواک کا استعمال کب سے کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائے صاحب, مسواک کا استعمال 5 وقت کے وضو میں کرتے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ. کیا سوتے ٹائم بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. 70 فائدے ہیں ماشاء اللہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. جی جی. اور مطلب ہمیشہ کبھی چوکتے نہیں, جیب میں رہتی ہے, پاس میں رہتی ہے. یہ دیکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ اللہ والے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے اچھے کام کرنے کے. السلام علیکم. آپ بھی مسواک کا استعمال کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اس کے فوائد محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت. منہ سے بدبو نہیں آتی ہے, جراثیم سے آپ کا جو منہ ہے وہ بالکل صاف ستھرا رہتا ہے, پیٹ کے تمام امراض اس سے صحیح ہوتے ہیں. فوائد محسوس کیا؟ جی جی بالکل. الحمدللہ. جس کو آقا نے جو ہے فائدے بتا دیے تو اس میں اب مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ تو یقیناً ہیں اس کے فائدے, بے شک. اور یہی ہمارا ایمان ہے. جو آقا نے فرما دیا وہ بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے, اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. بے شک. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے, اور عشق میں شرائط نہیں ہوا کرتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتا دیا ہے, اللہ نے جو ہمیں راستہ بتا دیا ہے, جو ہدایات دی ہیں, جو تعلیمات ہمارے لیے مختص کی ہیں, ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اس میں شک و شکوک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کشمیر سے. ماشاء اللہ. مسواک کا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں کرتے, کیوں نہیں کرتے. کتنے سال ہو گئے استعمال کرتے ہوئے؟ ہم تو تقریباً 50 سال سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ فائدے محسوس ہوتے ہیں؟ فائدہ بہت ہوتا ہے. یہ کون سے پیڑ سے نکلتی, کہاں سے آتی ہے مسواک؟ یہ پیلو کی ہے, راجستھان سے آتی ہے. راجستھان سے آتی ہے. کس طرح سے اس کی جڑ ہوتی ہے؟ کیا جڑ ہوتی ہے؟ جڑ. اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد کٹنگ کرتے ہیں آپ؟ ہاں پانی سے دھلتی ہے, کٹنگ کرتے ہیں. یہ گیلی ہوتی ہے کہ سوکھی ہوتی ہے؟ گیلی ہوتی ہے. ابھی بھی گیلی ہے, پانی چھڑکتے ہیں آپ اس پر؟ نہیں پانی نہیں چھڑکتے, گیلی ہوتی ہے, قدرتی ہے. گیلی جڑ ہو رہتی ہے. تو کتنے سال سے آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کم سے کم 15 سال سے تم کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ناظرین, یہ مسواک کے فائدے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسواک کا ہمیشہ استعمال کریں. یہ آپ کو 70 فوائد کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا, ایسا کہا گیا ہے. اس لیے مسواک کے فوائد بے شمار ہیں, اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ناظرین, تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کریں. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ, چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں. ریحانہ, پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میں نماز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں, تراویح کی نماز کے بارے میں. کیا عورتیں اور آدمی ساتھ نماز پڑھ سکتے کیا؟ ایک دوسرے بازو میں روم, ایک ہر بازو میں ایسے مسجد ہے تھوڑے سائڈ میں, تو وہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, تو ان کے وجہ سے لیڈیز بھی ادھر نماز پڑھتی تو چلتی کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. صوبیہ, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال تھا کہ ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, اور اس بار ہمیں اپنی بہن کی فیس بھی جمع کرنی ہے بی ایڈ کی, تو کیا ہم جو ایسا حساب نہیں ہے کہ ہم فیس بھی جمع کر دیں اس کے زکوٰۃ بھی, تو کیا جو زکوٰۃ نکالیں گے وہ فیس میں لگ جائے گی اس کی؟ یعنی آپ اپنی زکوٰۃ کو اپنی چھوٹی بہن کی فیس کے طور پر دینا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب, اس کی گنجائش ہے کیا؟ جی, اپنی زکوٰۃ اپنی چھوٹی بہن کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اب ایک سوال کیا بہن نے کہ وہ جیسے نماز کے بارے میں. جی آپ کی طرف آتے ہیں مولانا صاحب. جی
इमाम की आवाज़ से वो अगर तरावी ख़वातीन पढ़ रही हैं तो क्या वो हो जाएगी? देखिए, जब मकान दूसरा है, मस्जिद अलग है, वो कमरा अलग है, इस तरह से नमाज नहीं होती है, बीच में फासला नहीं होना चाहिए। सफ़े अगर लगातार हैं तब भी उसमें थोड़ी सी रियायत, औरतों और मर्दों का फ़र्क ये होता है कि ऐसा नहीं है कि बराबर में खड़ी हो गई तो वही नमाज पढ़ ले। हरम शरीफ में सारे लोग तवाफ एक साथ करते हैं, लेकिन नमाज के लिए उनको भी अलग-अलग किया जाता है। औरतों की सफ़ें अलग होंगी, मर्दों की अलग होंगी। अगर एक साथ है तब तो ये हो सकता है। आप दूसरे कमरे में हैं, मस्जिद बराबर में, आवाज़, सिर्फ आवाज़ आना काफ़ी नहीं है। जी, शीनी नाम कैसा है और ये बच्ची जो है वो बीमार रहती है, इसके लिए दुआए सेहत बता दें मौलाना साहब। देखिए, शीनी नाम तो बहुत अच्छा है, सुनने में भी बहुत मीठा लग रहा है और मतलब भी इसका मीठा ही होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम नाजरीन जो भी बीमार हैं या जो भी उनकी जायज़ मुराद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, बच्चे बात नहीं मानते मौलाना साहब, एक अहम मसला आज के दौर का बहुत बड़ा अलमिया है कि हर तीसरी चौथी माँ को यही शिकायत होती है कि बच्चे बात नहीं सुनते। देखिए, उसके लिए एक तो शुरू से उनको जो वो ज़िद करते हैं तो कुछ ज़िद को मान लिया जाए और कुछ ज़िद को ना माना जाए, उसे तोड़ा जाए। तो रफ्ता रफ्ता जब वो बड़े होते हैं तो मानने का जज्बा भी उनका रहता है। हम प्यार प्यार में, लाड मोहब्बत में जो कुछ वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने चाहा हमने कर दिया, तो उनको आदत हो जाती है अपनी हर बात मनवाने की, फिर मानने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। एक तो शुरू से तरबियत इस तरह से लेके चलनी चाहिए। दूसरे ये कि हमने एक तजर्बा किया है, बाद बुजुर्गों ने ये बताया है कि माँ जब नमाज़ पढ़ती है या बहन जब नमाज़ पढ़ती है तो जानमाज के सामने एक बोतल पानी की रख ले और नमाज से फारिग होने के बाद कुछ और पढ़े ना पढ़े, जो कुछ नमाज में पढ़ा गया है उसको दम कर दें, वो पानी उन बच्चों को पिलाया जाए तो उनकी सरकशी कम हो जाती है, बात मानने लगते हैं। जी, 2 कॉलर्स और हैं। जमीला साहिबा, आपका सवाल क्या है? जमीला साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? जमीला बहन, अगर हमारी आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं रोजे रहती हूँ तो मेरे मुंह में पानी बहुत ज्यादा आता है। मैंने थोक में पानी आता है। ठीक, एक कॉलर और हैं। जी, ज़ैनुल आबिदीन भाई, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने बच्चों के नाम प्लॉट खरीदे हैं। हाँ। और एक बच्चे को एक प्लॉट खरीद के दे दिया उनके मकान बनवाने के लिए। ठीक है। अब उसके ऊपर ज़कात होती है या ज़कात मुझे देनी है या नहीं देनी है? प्लॉट किन की मिल्कियत में है? आपने रजिस्ट्री करवा दी है बच्चों के नाम से? जी हाँ। जी, क्या सूरत है फिर मौलाना साहब इनकी? देखिए, वो चूंकि उन्होंने रहने के लिए दिया है उनको, जी, वो उनकी मिल्कियत करा दी। हाँ। वो मालिक हैं, लेकिन वो माले तिजारत नहीं है। जी, अपने रहने के लिए वो लिया है, जब भी वो इस्तेमाल होगा उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जी, लुआब दहन, बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि थूक से जो है वो रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो अगर मुंह में थूक बहुत बन रहा है तो क्या किया जाए? जी, देखिए, बहुत ज़्यादा अगर थूक बन रहा है तो उसको थूक लिया करें, जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर आप थूक उसको निकल लेते हैं तो ये भी जो है एक मकरूह चीज़ हो जाती है। तो और ऐसी चीज़ें ग़िज़ा में हासिल करें जिससे थूक ज़्यादा ना बने, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत से लोग हैं जो वो जमा करते रहते हैं, अगर वो फौरी तौर पर निगल ले तो शायद ये जमा करने की नौबत ही ना आए। थूक से रोजा टूटता नहीं है। जी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जमा, क्योंकि जब थूक आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके आएगा। वो इकट्ठा नहीं आएगा। जो थोड़ा सा आता है अगर निकल ले तो ठीक है, लेकिन ज्यादा आपके मुंह में इकट्ठा हो जाए उसे निकले नहीं, उसे थूक दे बाहर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इस दौरान के कुछ और सवालात आए हमारे पास। हम चूँकि रमज़ान मुबारक है, लोग बड़ी तादाद में सदका और खैरात करते हैं, तो बेहतर तरीक़ा क्या है मुस्तहिक़ीन को तलाश करके उन तक पहुंचने का? किस तरह उनकी तलाश की जाए मौलाना साहब? देखिए, तलाश करने के लिए हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, हम जिस वक्त आज हम दे रहे हैं उसी वक्त तलाश नहीं किया जाएगा। कई दिन पहले से हम नज़र रखें उनके घर के बच्चे क्या ला रहे हैं। हम दुकान पे खड़े हुए थे, एक बच्चा आया, उसने कहा 2 रुपए का सरसों का तेल दे दीजिए। हाँ। हमने अंदाज़ा कर लिया कि इनके घर की हालत कमज़ोर है। किसी ने कहा आधा किलो आटा दे दिए। हमें मालूम है कि 5-6 बच्चे हैं इनके, आधा किलो आटा लेने आए हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वह इन बातों से हमें दिल की बात सुने, दिल वाला जो कहा गया है ना, दिल में अगर कुरान मजीद में कहा है इन नफ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन, इस बात में नसीहत है उन लोगों के लिए जिनके सीने में दिल है। दिल तो सबके सीने में है, हसास दिल होना चाहिए। आदमी महसूस करे, इस बात से पता चला कि इनके पास पैसे नहीं हैं, हम खामोशी से 2-4-5 किलो तेल, तो चीनी 2-4 किलो, 10 किलो का आटा, आटे का कट्टा हमने उनके यहाँ पहुँचा दिया।
चाहे ज़कात से पहुंचाइए, और ज़कात आपकी पूरी हो गई तो ये ना सोचिए कि अब हम ज़कात भी दे चुके, सदका फितर भी दे चुके, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से अगर लेना चाहते हो तो इस तरह उसके बंदों को दो। बिल्कुल वैसा, बड़ी पते की बात आपने बताई। इंशाल्लाह फिर कुछ और मौका मिला तो जानेंगे। शीरीन से मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है आपका? नसरीन साहबा। हेलो, मेरा सवाल ये, मैं टॉप से वो राजस्थान से बोल रही हूँ, नसरीन। जी जी। मेरा बड़ा बेटा है, वो बिल्कुल नमाज रोजे से दूर है। अल्लाह से दुआ भी मांगती हूँ कि उसको अल्लाह ने हिदायत दे। वो वैसे रोडवेज में काम करता है तो ना रोजे रखता है ना नमाज पढ़ता। दूसरी बात, एक सवाल और है कि ना ये कुरान शरीफ जो अपन खत्म करते हैं, इसका वो आखिर में क्या दुआ मांगे इसको बख्शने के लिए, किस तरह, क्या तरीका है? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। फरीदा साहब सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं ज़कात के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए। मेरे पास 16 तोले सोना है जी, लेकिन हमारे शौहर ज्यादा ज़कात देना नहीं चाहते। 4-5 हजार देते अपने नौकरों को, काम वाले को ऐसा देते। तो उनसे हट के मैं अपने पास से 10-15 साड़ियाँ वगैरह दे देती हूँ अपने काम वालों को। तो क्या वो जायज है क्या नहीं? मौलाना साहब, तखमीना लगाना कितना ज़रूरी है और अंदाज़तन दे देने से क्या ज़कात हो जाएगी? देखिए, बहुत गहराई से इस बात को समझ लीजिए। पहली बात तो यह है, ज़कात आपके ऊपर अगर फ़र्ज़ है तो शौहर पैसा दे न दे, शौहर की जिम्मेदारी नहीं है। जी। पैसा किसे कहते हैं? सोना तो पैसा ही है। तो सोना आपके पास है, शौहर पैसा नहीं दे रहा है आपको ज़कात अदा करने के लिए, तो उसमें से थोड़ा सा लीजिए और बेचिए और उससे ज़कात अदा कीजिए। और कुछ साड़ियाँ और कुछ सामान देना, ये नेकी का काम ज़रूर है, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन इसका नाम ज़कात नहीं है। ज़कात इसको कहते हैं कि पूरी मालियत आपने जोड़ी, माल तिजारत है तो वो भी सोना है, चांदी है, नकद पैसा है, उस सब को जोड़कर और उसका हिसाब लगाकर 2.5% कम से कम वो देना ज़रूरी है। इससे कम दिया हुआ वो ज़कात नहीं होगा, वो सदका खैरात होगा, फरीज़ा आपका बाकी रह जाएगा। इसलिए इस बात को समझिए, शौहर आपको पैसे दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, न दें तो वो पैसा ही है, उसको नकद बनाइए और उससे अदा कीजिए। बिल्कुल मौलाना साहब। अब कुरान पाक को जो इसाल सवाब किया जाता है, बख्शा जाता है, उसका तरीका क्या है मौलाना साहब? देखिए, इसका कोई ख़ास तरीका जो मुतय्यन नहीं किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी आपने कुरान मुक़द्दस पढ़ा है, उसके वसीले से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी अपने लिए बेहतर चीज़ मांग सकते हैं, खूब मांगिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अयाल और दोस्त अहबाब सबके लिए दुआ करें। कोई ख़ास अल्फाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्फाज नहीं देखता, आपकी दिलों की नीयतों को देखता है। बस नीयतें बेहतर हों, जो भी मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है, वो देने वाला है। अब बच्चे कहना, वो जो बेटा है वो नमाज रोज़े से बहुत दूर है, बड़ा है, माशाल्लाह बरसर रोज़गार है, लेकिन माँ को ये दुख होता है कि वो इबादत से या अल्लाह ताला के फरमान की बजावरी से दूर है। मैं अपनी बहन से ये कहूँगा कि वो बच्चा आपकी गोद से ही तो निकल के गया है। आपने उस वक्त से उसके सामने नमाज पढ़ी होती, उसको नमाज की ताकीद की होती, बार बार समझाती, तो वो आज जवान होने के बाद एक भी नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, कुछ भी नहीं करता। आपको शिकायत हो रही है। शिकायत हमें आपसे है कि आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ा क्यों? बिल्कुल, आपको ख्याल रखना चाहिए था। और उसको समझाइए कि बेटे, आपको जो ये नौकरी मिली है, पुख्ता सरकारी नौकरी है, बेफिक्री की है। ये बेफिक्री किसने दी है? आज खुदा न खास्ता मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको ऐसा हो जाए, किसी आदमी को अगर माजूरी हो जाए, मजबूर हो जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। ये हाथ पैर उसने दिए हैं, आंखें उसने दी हैं, जिस्म दिया है, तंदुरुस्ती दी है, उसके शुक्र में कम से कम 5 वक्त की नमाज और फ़र्ज रोज़े तो रखनी चाहिए। इसलिए उसको समझाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए और इस बात के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार, मैं अपने बच्चे की तरबियत करने में जो मुझसे कोताही हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और इसको हिदायत दे। इंशाअल्लाह। मशकूर भाई, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मशकूर भाई। हाँ, ये अम्मी हमारी कुछ पूछना चाह रही, बात करनी। जी बात कराइए। हाँ, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें ये पूछना है कि हम बहुत परेशान रहते हैं, पूरे घर को परेशानी हमारे, हम बहुत बीमार रहते हैं, दवा करते हैं, कोई आराम नहीं। हमारे शौहर भी बीमार रहते हैं, बच्चे भी सब परेशान। हमारे बच्चों का रिश्ता आता है, बिल्कुल आते आते फिर उसको कट जाता है, कोई रिश्ता तय नहीं हो पाता। तो इसके लिए कोई ऐसी दुआ हो कि थोड़े कार्ड बताइए। इंशाअल्लाह, थोड़ा सा इंतज़ार। शादा साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है?
शाहिदा थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए शाहिदा साहबा, थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। हाँ, अब बताइए सवाल बताइए। अपनी बेटी के लिए अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बेटे के लिए रिश्ते के लिए मैं देना चाहती थी। एक बार इसकी सगाई टूट गई थी और दूसरी एक बार फिर तलाक हो गया है 6 महीने के अंदर। रिश्ते मौलाना तारिक साहब सब बताते हैं, सब मैं पढ़ती हूँ, रिश्ते भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कहाँ से रुकावट आ जाती है वो मुझे मालूम नहीं है। एक रिश्ता बहुत अच्छा आया, लेकिन गाँव वाले ने पूछने के लिए गए तो बोलते हैं कि ये लड़की गुस्से वाली, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा करके वो रिश्ता नहीं होने दिया, उसमें वो रुकावट आ गई। उसके लिए रिश्ते के लिए मौलाना तारिक साहब को बोलती हूँ कि मेरे लिए लड़की। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ में भी याद रखेंगे, वजीफा भी बता रहे हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, सारी बातें जो हैं पढ़ने से सारे काम नहीं हो जाते। कभी कभी हमारी कोई ऐसी कोताही गलती होती है जिसकी पकड़ में हम होते हैं, दुआ फिर नहीं सुनी जाती, सारी तदबीरें फेल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, कोताही हो सकती है, सलातुत तस्बीह पढ़कर भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। कोई बड़ा बोल ज़ुबान से निकल गया हो, उसकी पकड़ हो गई हो, कोई और कुछ असरात वगैरह भी हो सकते हैं। सारी चीज़ों को टटोलिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके बच्चों को अच्छे रिश्ते मिलें। जी मौलाना साहब, कोई वजीफा भी बता दीजिए। इसके लिए वो जो कुछ हम बताते हैं वो तो सब पढ़ी रही हैं, तो वो दुआ हम बताते हैं वो पढ़ रही होंगी। हाँ। इसके लिए आप नमाज तौबा और नमाज पनाह पढ़िए, इससे इंशाअल्लाह ताला आसान होगा मामला। दूसरी जो बहन मशकूर साहब की वालिदा ने कहा है, वो खुद भी बीमार रहती हैं, घर में भी सब लोग बीमार हैं, शौहर भी बीमार हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए कोई वजीफा मौलाना साहब? जी, सबसे पहले तो इसमें सबसे जो अहम जो इबादत या तस्बीह कह लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि दाऊ मर्दाकुम बिसदका, कि अपने मरीजों की जो दवा करनी है आपको वो सदक़े के ज़रिए करो। सदका तमाम बलाओं मुसीबतों को दूर करता है। तो अगर आप सदका कर रही हैं तो बेहतर है, अगर उसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादती कर दें, थोड़ा बढ़ा दें, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बड़ा मकबूल होगा। घर में ख़ास तौर पे पाकी का ख्याल रखें और बावजू रहें। बावजू रहने से भी बहुत सारी बलाएं मुसीबतें दूर रहती हैं। बिल्कुल साहब, और हम ये देखते हैं, जैसे आपने कहा कि सदका करिए, हम इंसानों के लिए सोचते हैं, अल्लाह की बड़ी प्यारी छोटी छोटी मखलूक़ात भी हैं, चिड़िया हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। अब गर्मी का मौसम है, उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दें, खाने को कुछ डाल दें, कितना उनका दिल दुआ देगा। तो खास तौर पे इस मौसम में, जो गर्मी का मौसम है, इसमें खास ख्याल रखा जाए कि अपने घर की छतों पे, बालकनी पे एक पानी का प्याला रख दें, थोड़े से दाने वगैरह रख दें, ताकि परिंदे उससे खाएं और उससे पिए भी, क्योंकि परिंदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, दुआ गो होते हैं, जिनके घरों पे वो दाना चुगते हैं या पानी पीते हैं। बिल्कुल साहब, शादी के लिए जो वजीफा है मौलाना साहब, उसके लिए आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक कॉलर हैं चमन, उनसे बात कर लें। सालार भाई, मौका मिला तो आपसे भी बात करेंगे। जी चमन साहब, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले सवाल है, मैं अपने बच्चों को बचपन से नमाज तरावी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी, मेरे ऊपर ही पढ़ता था बच्चा मेरा इतना। मैं उसको, और अब भी 5 वक्त की मैं भी नमाज पढ़ती हूँ और बच्चे से भी कहती हूँ, मगर मेरा लड़की तो मेरा कहना सुनती, मगर लड़का बिल्कुल कहना नहीं सुननी है। उसने कब से आपका साथ छोड़ दिया, ये बताइए? उम्र का वो कौन सा पड़ाव था, कितने बरस का था जब आपका साथ छोड़ा? ये, और अभी मेरे पास लेटा हुआ, उसको उठाया, बहुत बदतमीजी। नहीं, इबादत में आपका साथ छोड़ा, जैसे आपने कहा कि वो मेरे साथ साथ नमाज में भी मेरे साथ हुआ करता था, मुझे देखकर नमाज पढ़ता था, कहाँ आपने कोताही, पहली कोताही कितने साल की उम्र में महसूस की? जी 8-10 साल की। वो उसका स्कूल में भी दोबारा मैंने एडमिशन कराया कि पढ़ ले। अब कितने साल का है चमन साहबा? अब वो कितने साल का है? अब वो 18 साल का हो गया है। 10 साल आप कहाँ रही? 10 साल आप कहाँ रही? चलिए दूसरा सवाल बताइए। को भी घर पे बुला के पढ़वा रही थी मैं अभी 5-6 महीने पहले, तो वो नींद के मारे उठा नहीं, और वो दुआ भी पढ़ रही हूँ मैं, रब्बना हबलना वाली भी पढ़ती हूँ, नमाज तौबा भी पढ़ रही हूँ, अपनी कोताही भी देख रही हूँ। अल्लाह ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। आप अपनी सी पूरी कोशिश कर रही हैं, बाकी तौफीक अल्लाह के हाथ में है। जी मौलाना, इंतज़ार करते रहिए, अल्लाह से दुआ भी करती रहिए। हम भी दुआ करते हैं, तमाम बच्चे और बच्चियाँ जो वालिदैन के नाफरमान हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, उन सब को परवरदिगार इताअत शारी फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आप कोशिश जारी रखिए। एक चोट से नहीं टूटती है कोई चीज़, 2 चोट से टूट जाती है, 6 चोट से टूट जाएगी, कभी न कभी अल्लाह ताला
ہدایت دے گا. بالکل مولانا صاحب, اور ان لوگوں کو خاص طور پر چاہے وہ شادی کے لیے جو وظیفہ درکار ہے, انشاءاللہ کل مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. آج چونکہ وقت دعا ہے, وقت بہت کم رہ گیا ہے, جلدی سے ہاتھ اٹھائیے, آپ بھی ہم بھی اٹھاتے ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں. جی دعا سے پہلے ایک توجہ دلاتے ہیں, جی سلام اور سن فارما کی طرف سے توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمام روزے دار سحری کے وقت میں اپنی معمول کی دوائیں لینا نہ بھولیں, تاکہ آپ کا دن بھی سہولت سے گزرے اور روزہ بھی آسانی سے پورا ہو. جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. جتنے بھائی اور بہنیں اس وقت جہاں جہاں بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنی جگہ ٹھکانوں پر بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تیرے سامنے, پروردگار تو خود یہ فرماتا ہے کہ میرے سامنے جو کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے. پروردگار اپنی شان کریمی کا واسطہ دے اور ہماری حاجتیں پوری فرما دے. سب کے دلوں میں جو تمنائیں مرادیں ہیں آرزویں ہیں تو خوب جاننے والا ہے. سب کی دلی تمناؤں مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے. جتنے بھائی اور بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے دعاؤں کو ہم سے کہتے ہیں, پروردگار سب کے ہم نام نہیں لے سکتے, تو سب کے ناموں کو, ان کے کاموں کو, ان کے حالات کو جاننے والا ہے. سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے. جو کسی اور طرح کی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں عافیت و سلامتی نصیب فرما. اے پروردگار رمضان المبارک کے روزے ہمارے لیے آسان فرما, تلاوت آسان فرما, تراویح اور نوازیں آسان فرما. ہم نے جو تلاوتیں کی ہیں, جو روزے رکھے ہیں, جو عبادتیں کی ہیں, پروردگار یقیناً اس میں بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی. ان کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہماری تلاوت قبول فرما دے. اے پروردگار جتنے لوگ بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. اے پروردگار ہسپتالوں میں بیماروں کی بھیڑ ہے, پروردگار ان سب کو بھی شفا دے. جو لوگ اپنے اپنے گھروں سے اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوئے ہیں, پروردگار ان کو مقصدوں میں کامیابی عطا فرما. جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پروردگار ان کو کامیابی عطا فرما. جو ملازمتوں کے لیے کوشاں ہیں ان کے حاجتیں پوری فرما دے. اے پروردگار ہر طرح کی حاجتیں ہم تیرے سامنے رکھتے ہیں, اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, دامن پسارتے ہیں. اپنا کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مولانا صاحب, ان دعاؤں میں تاثیر پیدا کرے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. آپ دونوں کا حد درجہ شکریہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دے, زندگی دے, صحت و عافیت دے, تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مل کر اجازت لیتے ہیں ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.